Assalamu alaikum, dear students. Let us translate the text drought on page 150. The girl looked at him incredulously. Through all his misery, he had declined to go to Falbury. No religion, no respect, no privacy for women folk, dear. She said she had often heard him say, "Hurry up, my child, we have a long way to go," said Gafur. Amina was going to collect the drinking bowl and her father's brass plate. "Leave them alone, darling. They will pay for the penance of Mahesh," said Gafur. In the dead of night, Gafur set out, holding his daughter by the hand. He had nobody to call his own in the village. He had nothing to say to anybody. Crossing the yard, when he reached the acacia, he stopped stock still and burst out crying loudly. "Allah," he said, raising his face towards the star-spangled black sky. "Punish me as much as you like." Mahesh died with the dust on his lips. Nobody left even the tiniest bit of land for him to feed on. Please never forgive the landlord's sin, who never let him eat the grass nor drink the water you have given. They set out for the jute mill. So let us translate this text and know the words and meaning. The girl looked at him. Look at someone के माने होते हैं देखना. Okay? The girl looked at him incredulously. Incredulously माने होता है ताज्जुब में हो करके, शक के साथ. यानी मतलब शक भी हो और उसे ताज्जुब भी हो कि आदमी क्या कह रहा है, तो हम वहाँ के लिए incredulously का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे. The girl looked at him. लड़की ने उसे देखा शक के और हैरत के अंदाज में. Through all his misery. misery के माने होते हैं गरीबी या परेशानी. Through all his misery, अपनी पूरी परेशानियों में, गरीबी में, he had declined, वो मुअत्तल करता रहा है, वो इनकार करता रहा है, to go to फलबरी जाने के लिए. To decline means होता है to reject, to deny, to refuse. Okay? No religion, no respect, no privacy for women folk, dear. कोई दीन नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई राज की बात नहीं. For women folk, dear, औरतों के लिए वहाँ पर. She had often heard him say, वो कभी कभार इस चीज़ का जिक्र करते हुए उसे सुना करती थी. यानी अपने बाप को ये कहते हुए कि वहाँ पर न कोई दीन है, न रिस्पेक्ट है, न कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है औरतों के लिए, फिर भी आज वो वहाँ जाने के लिए रेडी है इस परेशानी के दिनों में, इन परेशानी के दिनों में. Hurry up, my child, we have a long way to go. जल्दी करो मेरी बच्ची. We have a long way to go. हमें काफ़ी दूर जाना है. Okay? said गफूर ने कहा. तो यहाँ पे women folk माने होता है औरत लोग. Okay? And privacy means राज, respect, इज्जत. Often माने अक्सर व बेशतर. नाम? Yeah, good.
हरी अप के मन होते हैं मतलब जल्दी करना। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, हमें एक लंबे रास्ते को जाना है, यानी हमें काफ़ी दूर जाना है। सेड गफूर, गफूर ने कहा। Amna was going to collect the drinking bowl and her father's brass plate. आमना जा रही थी पीने वाले बोतलों को जमा करने और अपने फादर के, अपने बाप के पीतल के प्लेट को लाने के लिए। Leave them alone, उन्हें छोड़ दो अकेला। Darling, प्यारी बेटी। They will pay for the penance of Mahesh, said Gafur. वे सब कफ़ारा को अदा करेंगे महेश के, वो महेश के लिए प्रायश्चित करेंगे अपने गुनाहों का। said गफूर, गफूर ने कहा। टर्निंग माने प्यारी, पे फॉर द पेनेंस माने होता है कफ़ारा अदा करना। ओके। इन द डेड ऑफ नाइट, रात की मौत में, यानी रात के अंधेरों में और सन्नाटों में। गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड। गफूर चल पड़ा अपने कारवां पर। गफूर निकल गया सफ़र के लिए। होल्डिंग हिज डॉटर, अपने बेटी को पकड़ करके, बाय द हैंड, हाथ से। He had nobody to call his own in the village. He had nobody, उसके पास कोई शख्स नहीं था जिसे वो अपना कह सके गांव में। To call someone his own माने अपना कहना। In the village, गांव में। He had nothing to say to anybody, उसके पास कोई बात नहीं थी दूसरों से या किसी से कहने के लिए। He had nobody, he had nothing to say to anybody, उसके पास कोई चीज़ नहीं थी कहने के लिए किसी शख्स से। क्रॉसिंग द यार्ड, सहन को पार करते हुए। When he reached the acacia, जब वो बबूल के पेड़ के पास पहुंचा। अकाशिया के माने होते हैं बबूल का पेड़। He stopped stock still and burst out crying loudly, तो वो वहाँ पर मुकम्मल सीधा खड़ा हो गया और रो पड़ा काफ़ी तेज़ी से। तो स्टैंड स्टॉक स्टिल माने होता है सीधे तौर से खड़े हो जाना। एंड बस्ट आउट क्राइंग के माने होते हैं रो पड़ना। ओके, यानी रो पड़ना ऐसे। लाउडली मीन्स तेज। अल्लाह, ही सेड, उसने कहा, अल्लाह। रेजिंग हिज फेस, अपने चेहरे को उठाते हुए। टुवर्ड्स द स्टार स्पैंकल्ड ब्लैक स्काई, अपने चेहरे को उठाते हुए तारों से भरे हुए काले आसमान की तरफ। स्टार स्पैंकल्ड माने होता है तारों से भरा हुआ होना। ओके, रेज माने उठाना। रेज समोन्स फेस माने अपने चेहरे को ऊपर करना। स्टार स्पैंकल्ड माने होता है तारों से भरा हुआ होना। वो क्या कहता है? वो कहता है, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे सजा दो जितना तुम चाहो। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश मर गया अपने होठों पर प्यास लिए हुए। Nobody left even the tiniest bit of land for him to feed on,
किसी भी शख्स ने ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा भी उसके लिए नहीं छोड़ा टू फीड ऑन, जिस पर वो चर सके, अपने ग़िज़ा को हासिल कर सके। ओके, तो यहाँ पर लीव का यानी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। टाइनी, ये टाइनीएस्ट, टाइनी का क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। टाइनीस्ट बेट यानी थोड़ा सा भी, मतलब हिस्सा। ओके, टू फीड ऑन, उस पर खाना हासिल करने के लिए, यानी उस पर खाने के लिए। प्लीज़ नेवर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड्स सिन, मेहरबानी करके आप ज़मींदार को कभी ना माफ़ करना, ज़मींदार के गुनाह को कभी मत माफ़ करना। अल्लाह। ओके, फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, सिन माने होता है गुनाह। लैंडलॉर्ड सिन, ज़मींदार के गुनाह को, ज़मींदार के पाप को। Who never let him eat the grass, जिसने कभी भी खाने नहीं दिया उसको घास को। Not drink the water, और ना ही पानी पीने दिया। You have gave, जैसे आपने दिया है सारे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए और परिंदों के लिए। ओके, ये मतलब वहाँ अकाशिया के पेड़ के पास खड़ा होकर के ये सारी बातें कह रहा है। ओके ओके, दे सेट आउट फॉर द जूट मिल, और वे लोग रवाना हो गए जूट मिल की तरफ। तो ये बातें सारी पूरी करके गफूर अपने बेटे के साथ मिल करके गांव वालों के, ज़मींदार के, ताराक्रांता के जुल्म को सह करके उसने इस गांव को खैराबाद कर दिया और जूट मिल की तरफ काम करने के लिए निकल गया, जहाँ पर न कोई दीनदारी थी, न रिस्पेक्ट थी, न राज नाम की कोई चीज़ थी औरतों के लिए, और वो परेशान होकर के आखिर में गांव छोड़ दिया। So I hope that you understood the translation today, and you have understood as well the words and meanings. And if you have any problem, you can ask. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.